دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تمام دیکھنے والے کو وائس آف پروفیشنل میں ایک مرتبہ پھر بھلی کار ویلکم، خوش آمدید، اہلاً وسہلاً۔ جیسا کہ ہم وائس آف پروفیشنل میں مختلف پروفیشنلز کو اپنے انٹرویو میں دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے ہم مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مینٹل ہیلتھ پہ ہے اور رمضان کے حوالے سے ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہے جن کا تعلق پاکستان ملتان سے ہے، MBBS ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سعدیہ افتخار۔ ویلکم کرتے ہیں ان کو ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام عرفان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسا لگ رہا ہے؟ کافی ٹائم سے ہم ایک پلان کر رہے تھے مگر الحمدللہ فائنلی وی ڈن اٹ۔ بہت اچھا لگا، کافی دنوں سے انتظار تھا کیونکہ آپ کا ہی یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو ہم بہت ساری انفارمیشن لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم آئی تھنک ہم لوگوں کی ہیلپ ہم لوگوں تک ریچ کر سکتے ہیں تھرو یور پلیٹ فارم، اور آئی ایم ریئلی گلیڈ اینڈ ہیپی ٹو بی ہیئر آن یور شو ٹوڈے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اچھا ڈاکٹر، پروگرام تھوڑا سا فارمیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائس آف پروفیشنل ایک یونیک کیریئر کاؤنسلنگ چینل کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر اس کو آن لائن سیشن بھی شروع کیا ہے، جیسے کہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن سیشن میں۔ اس میں ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، رمضان اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایجوکیشن ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو رمضان کریم کی مبارکباد دیتا ہوں کہ کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان، اور رمضان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو بھی رمضان کی بہت ساری مبارکباد، اور الحمدللہ ہمارا رمضان ابھی تک بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ ملتان میں ابھی تک گرمی نہیں آئی، تو ہمارے اس حساب سے کافی اچھا چل رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، اس کا انتظار ہر مسلمان کو پورا سال رہتا ہے، اور اللہ پاک اس میں ہماری سارے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمیں ہماری قبول فرمائے۔ اور آمین۔ آپ نے جیسے مجھ سے پوچھا کہ رمضان کے حوالے سے میں بات کروں کچھ، تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی کہ رمضان آنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم ایک لسٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے اب کیا کھانا ہے، بس ہمارا ایک گول بن جاتا ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے۔ ہم بہت کچھ اچھی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایک فکس ہم نے گول بنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے ریسٹرکٹڈ ہم ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فرائیڈ آئٹمس کھانے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ ہم نے جی سموسے، پکوڑے اور فرائیڈ آئٹمس پہ ہم فوکس کیا ہوا ہوتا ہے، یا بہت سارا روح افزا کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ ان ڈرنکس کے علاوہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا تو روزہ افطار ہی نہیں ہو سکتا۔ ادھورا ہے۔ جی جی جی، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم جی ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ ہمیں رمضان کا جو سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں کم کھانا چاہیے، اپنی صحت کو مینٹین کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ایسا کھائیں جس سے ہماری صحت اور خراب ہو جائے۔ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے اگر ہم سحری سے ہی سٹارٹ کریں تو یوزلی آپ دیکھیے کہ کانسیپٹ ہے کہ سحری کے ٹائم لوگوں نے پراپر سالن اور مسالے والی چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم ایک سمپل سحری بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہیلدی ہے۔ آپ Exactly. دہی کے ساتھ دہی لیں، سادی چپاتی لیں، اٹ از ویری ہیلدی۔ اور چائے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیکاز میں خود آئی ایم اے ٹی لور، تو میں اس پہ بالکل کوئی کمنٹ نہیں کروں گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈال دی ہے کہ ہم نے پراٹھوں پہ اور فرائیڈ آئٹمس پہ اور مسالے والی چیزوں پہ، اور پھر اس کے بعد بچے یا بڑے اس چیز کو کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں بد ہضمی ہو گئی ہے، جسے ہم انڈائجیشن کہتے ہیں، یا ڈسپیپسیا جسے آپ کہتے ہیں، تیزابیت، معدے میں جلن یا تیزابیت کہتے ہیں۔ یہ کامن فیکٹر ہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر میں ہر دوسرے بندے کو ہوتی ہے، اور پھر ہم جو ہے نا وہ میڈیسنز پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر سیم چیز ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں افطار کے ٹائم۔ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل۔ جی اچھا، ہمیں رمضان میں بیسیکلی ان شیڈول ہونا چاہیے، جو کہ ہم آؤٹ آف شیڈول ہو جاتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی ایسا ہی کنسیپٹ ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سارا دن ہم نے بھوک کاٹی ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں بہت زیادہ کھانا ہے، کیونکہ اگر ہم کنٹرولڈ ڈائٹ نہیں کریں گے تو رات کے ٹائم پہ پھر ہمیں کھانا ہے، کیونکہ افطاری کرتے ہیں، ڈٹ کے افطاری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر لنچ ڈنر کرتے ہیں، ڈنر کے بعد پھر ہمیں سحری کرنی پڑتی ہے، تو وہ سارا جو شیڈول ہمارا ہوتا ہے وہ ایکچولی ہیوی ہو جاتا ہے۔ جی، حالانکہ ہمیں یہ ایک بہت بہترین موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر کریں۔ اگر ہم اس میں بیلنس کھائیں گے تو آنیسٹلی عرفان صاحب، آپ
you will feel so light. आपको फील होगा कि हम अपने आप को बहुत बहुत बेहतर करेंगे आम दिनों से ज्यादा अगर हम अपने आप को एक बैलेंस डाइट की तरफ लेके आएंगे, ना कि हम अफ्तारी के टाइम हम ये सोचें कि जी अब जितना हो सकता है तो हम फ्राइड आइटम्स को इंक्लूड करें और अनहेल्दी चीजों की तरफ आए, विच इज आई थिंक मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है और ये गलत कॉन्सेप्ट बन गया हमारे यहाँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम इफ्तारी के टाइम पे बच्चे बन जाते हैं जिस तरह हम जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह बल्कि बचपन में हमने आपको जब मैं फर्स्ट पहला रोजा रखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अभी बस अजान का टाइम आए तो हम टूट पड़े। मैं आपको बताऊं कि बच्चों में ज्यादा अवेयरनेस आ गई है मीडिया के थ्रू, सोशल बिल्कुल मीडिया के थ्रू उनमें ज्यादा अवेयरनेस है। वो मेरे घर में जो है वो ज्यादातर इनका फोकस होता है कि हम हेल्दी चीज खाएं, कि आज ये पकौड़े क्यों बन गए, तो इट इज अ वेरी गुड साइन कि वो अब कट डाउन कर रहे हैं ये ऐसे जो मीठे जो ड्रिंक्स होते हैं और जिसमें हाई शुगर या हाई कार्ब्स आप कहेंगे ऐड हुई भी होती हैं, जो कि विच इज वेरी हेल्दी फॉर योर अनहेल्दी फॉर योर हेल्थ। और सही कह उसके लिए रहे हैं। आप वो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में जरा प्रैक्टिस अब इस पे कंट्रोल चल रही है, होपफुली कि हम जरा इस पे सक्सेसफुल हो जाएंगे एक दिन। मुझे उम्मीद है कि हम सिर्फ आप नहीं, हम सबकी जो फैमिलीज है जी बच्चों को कंट्रोल करें, हम खुद को बिल्कुल अपने आप को एब्सोल्युटली कंट्रोल करें। एक्चुअली हम जब खुद एब्सोल्युटली कंट्रोल करेंगे तब हमारे बच्चे जो है इस चीज को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है, हमें जो चीजें नहीं करनी है उनसे हम जो है थोड़ा हटके रहना है, मगर हम क्या करते हैं, हम खुद करते हैं, बच्चे हमें देखते हैं, उसके बाद फिर वही चीज फॉलो करते हैं। तो परफेक्ट, बिल्कुल क्योंकि सही। हम वो सिर्फ बच्चे फिर हमें क्या कहते हैं कि आप कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो किसको फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करते हैं। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, तब जाके हम कंट्रोल, हम हमारे जो बच्चे जो बिल्कुल बिल्कुल हम एक एग्जाम्पल है ना बिल्कुल अपने यस बच्चों के लिए, बिल्कुल यस आपने सही बात की जी। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जिस तरह हमने बात की कि डाइट के हवाले से और हमारे जो डेली रूटीन के हवाले से, यहाँ पर एक सवाल मुझे जहन में आया मेंटल हेल्थ के हवाले से। एक तो होती है फिजिकल हेल्थ हमारी, दूसरी होती है हमारी मेंटल हेल्थ। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों में से जो फर्स्ट है उस पर आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि मेंटल हेल्थ है क्या, और इसको हम किस तरह पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, और इसके असरात हमारे जिंदगी में क्या हैं। देखिए पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी तमाम लोगों को कि हेल्थ, हम समझते हैं कि हेल्थ का ताल्लुक जो है कि आपकी हेल्थ खराब है तो उसका ताल्लुक सिर्फ खांसी जुकाम बुखार से है, या अगर किसी को डायबिटीज हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया जिसमें हमने दवाइयां खानी और हमने डॉक्टर तक पहुंचना है, इसी को हम हेल्थ कंसिडर करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो सही है। डेफिनेशन है वो उसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को हम हेल्थ कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो डेफिनेटली आप मेंटली भी रिलैक्स हैं, और जब आप मेंटली हेल्दी होंगे तो नेचुरली कि आपका जो बिहेवियर होगा या आपका एटीट्यूड होगा या आपका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी या आपकी अपनी फैमिली में भी, वो भी पॉजिटिव होगा। जब आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, मतलब आप सारा दिन एक इंसान लेजी है और वो उसकी कोई इतनी एक्टिविटी ही नहीं है और ना वो फिजिकली एक्टिव है, ना एक्सरसाइज है, ना हेल्दी फूड है, ना हेल्दी डाइट है, और उसके ऊपर सोशल एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। आपको पता ही है जी कि हम जिस स्टेट से स्पेशली हम पाकिस्तान जो है हमारा गुजर रहा है, तो कई लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रेशर है कि सबसे पहले हमारा इकोनॉमिकली कितना हम इस वक्त जो एक फेस कर रहे हैं, एक डाउनफॉल फेस क्राइसिस, कर रहे हैं, यस और क्राइसिस में जिसकी वजह हम। से बहुत से लोगों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। अब देखिए ये बात तो अंडरस्टूड है कि बड़ों में तो ये है बिकॉज ऑब्वियसली मर्दों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, उन्होंने घर भी चलाना है, और जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है तो वो थोड़ा सा टफ हो गया है। लेकिन मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही अजीब सी एक बात है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, अब आप जी यूथ की बात करेंगे, यंग में आपका आपका आप ये सोचेंगे कि यंग में यूथ आ गई हमारी, लेकिन यूथ के अलावा हमारे जो यंग है जनरेशन, यानी आप ये समझें बिटवीन 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं,
आप ये देखिए कि उनमें सोशल एंजाइटी का एक फैक्टर देखा गया है। बहुत ज्यादा। मैं एक स्टडी पढ़ रही थी कि अगर आप ये देखिए कि ग्लोबली मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ कि 7 में से एक बच्चा यानी 3% जो है ना, मतलब बिटवीन 10 to 19 years ऑफ एज जो कि बच्चे हैं जो इस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार हैं। अब बात एग्जैक्टली। यही आती है कि ये ऐसा क्या हमारे सिस्टम में खराबी आ गई है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारे यहाँ अंदर जो है एक गैप आ रहा है जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये देखिए कि इस एज में एंजाइटी अगर एक लेवल तक पहुंच जाती है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। और डिप्रेशन, आप जानते हैं कि डिप्रेशन इतना एक सिवियर एक डिजीज ही इसको कहेंगे, बिकॉज आई वुड नॉट कंसिडर एज अ डिसऑर्डर, क्योंकि ये एक डिजीज, क्योंकि ये बाद में सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ ले जाती है। एग्जैक्टली हमारे पास काफ़ी इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर और ये एंग्जाइटी और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स बंदों को एक स्ट्रेस में आके स्ट्रेस में चले जाते हैं, स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उनकी कंडीशन वो नहीं रहती, उनको खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ चले जाते हैं। लास्ट में उनको कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बता दें कि ये सारी चीज़ें, इस सारे सिस्टम में हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर भी आ जाता है, इसमें कुछ फैक्टर्स हमारे पेरेंट्स के भी हैं, हमारी सोसाइटी का भी है। मैं ये चाहूँगा क्योंकि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर मसाइल के अंबार हैं। ठीक है, आप घर से निकल रहे हैं तो आपके मसाइल हैं, जॉब के पास आपके मसाइल हैं, आपके घर के अंदर मसाइल हैं, आपके हर तरफ जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को किस तरह हैंडल करेंगे, और फिर हम किस तरह मैं चाहूँगा कि आप मुझे बता दें कि हम अपनी जो हेल्थ को किस तरह बरकरार रख सकते हैं जहाँ देखिए पर इतने सारे जी, प्रॉब्लम्स हों। देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, अगर हम इस पे मेंटल हेल्थ पे अगर हम बात करेंगे तो आप यकीन करें आपको एक और नया एक इंटरव्यू प्लान करना पड़ेगा, या हम एक और सेशन प्लान, बिकॉज जी। इट्स अ ब्रॉडर टॉपिक, और इस पे हम जितना बात करें उतना कम है। लेकिन मैं इसको सम अप करूंगी और समराइज करके सिर्फ मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो चीज पहुंचाऊं जो लोगों को समझ आ जाए, जो कि इजी एग्जैक्टली। आसान लफ्जों में लोगों तक मेरी बात पहुंचे। देखिए, मैं आपने अभी खुद ही आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि आपने इस वक्त पेरेंटिंग की और घर की और क्वालिटी ऑफ जो आपकी होम लाइफ है ना, अ बेटर होम लाइफ, उसकी आपने इस वक्त बात की। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास इस वक्त जिस चीज का हम लैक जहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी में गैप है, वो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन हमारे सब लेवल पे हर इंसान की एक अल्लाह ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी हैं, और हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां पहचाननी है और हमने उन जिम्मेदारियों को फुलफिल करना है। देखिए, कम्युनिकेशन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो स्टार्ट आपके घर से होता है। और ये दिस अप्लाइज टू एवरी इंडिविजुअल, नॉट ओनली चिल्ड्रन, यूथ, एक मैरिड वुमेन, अनमैरिड women और गर्ल, men, everybody, ये सबके ओके। लिए अप्लाई होता है। क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन ये वो चीज है कि आप जब किसी की बात सिर्फ सुन लेते हैं ना, तो उसके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। और एक मैं आपको और बात बताऊं कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पर मैं एक चीज आपको यहाँ पर मैं एक जी, चीज हमारा आधा जो 80% जो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अगर कोई सीधी बात भी कर रहा होगा, हम पाकिस्तानी, एज अ बीइंग पाकिस्तानी, हमारे पास सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये भी है कि हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और दूसरे की बात को हम वैल्यू नहीं देते। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि ना सुनना भी एक जो है इग्नोरेंस में आ जाता है, और आपका जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाती है ये चीज कि आपका, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं तो आपको जाहिर बात है आपको समझ में भी कहाँ से आएगी ये चीज। देखिए